आप सुन Yes, पा रहे sir. हैं? Yes, sir. यस, Yes, sir. Yes, sir. यस. Last in the last period we discussed about hypothesis testing. Taking that aspect further, today we would be discussing about type 1 and 2 error, and also about 1 and 2 tail test. Yeah, you can say testing of 1 and 2 tail hypothesis. At the end of the last period, we had talked about decision making on accepting and rejecting hypothesis. हमने कहा था कि hypothesis के रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस के संबंध में 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं. पहला आउटकम क्या है? सपोज कि you reject null hypothesis when it is false. Null hypothesis is false means there is significant difference between the variables being compared. जैसे यहां पर देखिए मेथड ए और बी दोनों में अंतर है, लेकिन नल हाइपोथेसिस आप जानते हैं नल हाइपोथेसिस क्या होता है? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन ए एंड मीन 2, मीन ए और मीन बी, और मीन 1 और मीन 2. लेकिन यहां पर तो डिफरेंस है, इट इज नॉट दिख रहा है. मीन मेथड ए और मेथड बी जो है वो इक्वल नहीं है. देयर इज सिग्निफिकेंट, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू. तो ऐसी स्थिति में अगर डिफरेंस है, हम करें देयर इज नो डिफरेंस, बट इफ डिफरेंट एग्जिस्ट, सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट्स और हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देते हैं, then it's right decision, it's a correct decision, because hypothesis was false, hence it was rejected, so it is a correct decision. Second decision is that, second outcome may be, you don't reject a null hypothesis when it is true. True means There is significant our difference. hypothesis is that we have taken hypothesis कि there is no, there is no significant difference. Our hypothesis is there is no significant difference between method A and B on achievement. या यूं कहें, there is no significant difference between mean of a group and mean of another group. तो हमारा जो null है वो तो हाइपोथेसिस ही कहता है there is no significant difference. और अगर ये ट्रू है, दोनों में डिफरेंस नहीं है, तो हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है. ऐसे स्थिति में अगर हम उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं, hypothesis not rejected, hypothesis is accepted, तब भी हमारा डिसीजन करेक्ट है, बिकॉज मेथड ए और बी में डिफरेंस ही नहीं. देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, दिस हाइपोथेसिस इज ट्रू. और ट्रू हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट नहीं करते, कहने का मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं. Still decision is correct. Now these two outcomes, third and fourth, you can see on the screen. You reject a null hypothesis when it is true. अगर significant difference नहीं है और आप hypothesis को reject करते हैं और कहते हैं कि there is significant difference, तो जाहिर है कि आपका decision गलत हो गया. Hypothesis, in fact, hypothesis is true, meaning there is no difference between method A and B, no significant difference between method A and B, but you have rejected this null hypothesis. Whereas it should not be rejected, because in real sense there is no difference between method A and B. There is no significant difference between method A and B. Both are alike. दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों इक्वल है मोर लेस.
एटलीस्ट दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ये रियल सिचुएशन है, लेकिन हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करने का मतलब कि हम ये कह रहे हैं देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू, तो हमारा ये डिसीजन गलत हो गया, दिस डिसीजन इज रॉन्ग। और लास्ट आउटकम जो 4 नंबर पर है, आप यहां देखिए, नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, इन ट्रू सेंस इट इज फॉल्स। फॉल्स मींस कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। हमारा हाइपोथेसिस है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इन फैक्ट देयर इज डिफरेंस बिटवीन मीन ए एंड बी। इसका मतलब जो हाइपोथेसिस मेरा है वो फॉल्स है और उसको हम रिजेक्ट नहीं करते हैं, जबकि उसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए था, तो ये भी रॉन्ग डिसीजन है। ये 4 आउटकम्स हैं जिसमें कि 2 रॉन्ग डिसीजंस होने की संभावना है। You might be rejecting a null hypothesis when it is true, or you might not be rejecting a null hypothesis when it is false. So these conditions, these are the wrong decisions. You see the another slide, the same thing has been explained here. This is a decision about null hypothesis, and you know null hypothesis, there is no significant difference between two means. If you fail to reject, if null hypothesis is true and you fail to reject, you don't reject, then it is a correct decision. Hypothesis कह रहा है there is no significant difference और आपने मान लिया, fail to reject, तो ये आपका डिसीजन जो है सही है। लेकिन अगर hypothesis false है, false means दोनों में डिफरेंस है, लेकिन आप रिजेक्ट नहीं कर पाए, एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारा डिसीजन गलत हो गया, और दिस इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। If hypothesis is false and you fail to reject it, this situation leads to type 2 error. Hypothesis false है, hypothesis हमारा है there is no significant difference, it is not right. True position क्या है, there is significant difference between two means. हमारा हाइपोथेसिस जो हमने बनाया है वो इन ट्रू सेंस फॉल्स, लेकिन हमने क्या किया, फेल टू रिजेक्ट। हमारे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट हो जाना चाहिए था। जब रिजेक्ट होता तभी हम कहते हैं कि हाँ देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम कह रहे हैं हमारा रिजल्ट आ गया कि हाइपोथेसिस सही है, तो हमने गलती की। दिस इज द हमारा जो टाइप 2 एरर। Likewise, null hypothesis, I am repeating again and again because you get a very clear view, clear picture. You don't have any iota of doubt. Hypothesis आपका true है। True कहने का मतलब सही में दोनों में डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया। अगर आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट होने के बाद आपका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस है, जबकि डिफरेंस था ही नहीं, तो दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। ये हाइपोथेसिस जो था ये फॉल्स था। फॉल्स मतलब इट वाज नॉट ट्रू। हाइपोथेसिस कह रहा है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, बट डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा था। आपने रिजेक्ट कर दिया, तो अच्छा किया। रिजेक्ट करने के बाद ये पता चल गया कि दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो आपका डिसीजन करेक्ट है। तो दीज टू डिसीजंस लीड टू टाइप 2 and type 1 error. Now I will be further explaining type 1 error. The first kind of error that is possible involves the rejection of a null hypothesis that is actually true. आप याद रखिए rejection word. If you reject a null hypothesis when it is true, then it is a condition of type 1 error.
You reject a null hypothesis when it's true. If it is true, it should not have been rejected. Lekin we rejected it. So this is type 1 error, and this is also called error of the first kind. You can call it type 1 error, that is more popular, but it's also called error of the first kind. Now एक एग्जाम्पल देखिए. मान लीजिए एक ड्रग की टेस्टिंग चल रही है. अभी जानते हैं कोरोना वायरस की टेस्टिंग चल रही है, कोरोना वैक्सीन की. अब मान लीजिए कि if we reject the null hypothesis in this situation, then our claim is that drug does in fact have some effect on a disease. But if the null hypothesis is true, then in reality the drug does not combat the disease at all. The drug is falsely claimed to have a positive effect on a disease. अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि there is suppose drug being used to treat a disease, या vaccine is being developed for controlling this COVID-19, and if we reject the null hypothesis in this situation, then our claim is that drug does in fact have some effect on a disease. हम ये क्लेम करते हैं कि ड्रग इनफैक्ट ड्रग का जो है इसमें कोरोना वैक्सीन जो है, रादर यू से वैक्सीन का जो है, वैक्सीन ड्रग को जिस कोरोना को कंट्रोल करेगा, इसका इफेक्ट है कोरोना पर, कोरोना को कंट्रोल करने में. बट इफ द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है इन रियलिटी, अगर ट्रू है तो क्या होगा कि ड्रग हैज नो इंपैक्ट, द वैक्सीन हैज नो इंपैक्ट ऑन कोरोना. दिस इज द नल हाइपोथेसिस. इफ द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू इन रियलिटी, it means the vaccine does not combat the COVID-19 at all. जो वैक्सीन है हमारा, उसका कोरोना पर कोई इंपैक्ट नहीं है, वो कोरोना को रोक नहीं सकता है. The drug or the vaccine is falsely claimed to have a positive effect on disease. लेकिन अगर इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, इनफैक्ट ड्रग का कोई इंपैक्ट नहीं, वैक्सीन का कोई इंपैक्ट नहीं, लेकिन हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, तो क्या रिजल्ट निकलता है? इट मींस कि दिस ड्रग और दिस वैक्सीन कैन चेक और कॉम्बैट कोविड-19. अब जो वैक्सीन कॉम्बैट कर ही नहीं सकता, उसके बारे में हमारा रिजल्ट आ गया कि ये कॉम्बैट करता है, हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया. स्थिति में आप सोच सकते हैं क्या होगा. हम वैक्सीन का इस्तेमाल कर लेंगे, बट वैक्सीन हैज नो इंपैक्ट ऑन चेकिंग द कोरोना और कोविड-19. तो ये सिचुएशन आ सकता है, और आप जानते हैं कि अगर सिचुएशन कितना मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो दिस इज टाइप 1 एरर. If the null hypothesis is true, but you reject it. And what is null hypothesis? Null hypothesis is that the vaccine does not combat COVID-19. हमारा वैक्सीन जो है COVID-19 पर कोई प्रभाव नहीं. लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पता चलता है कि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, हम कह रहे नहीं इस वैक्सीन का कोरोना पर प्रभाव है. तो जाहिर है रिजल्ट हमारा बता रहा है कोरोना पर प्रभाव है. तो इस प्रभाव के हिसाब से या रिजल्ट के हिसाब से अगर हम डिसीजन लेंगे तो हम क्या करेंगे? हम उस वैक्सीन का इस्तेमाल करेंगे. Whereas that vaccine is useless, it is having no effect on the disease. तो ये है टाइप 1 एरर. जो बात हम अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे थे. नाउ टेकिंग दिस एग्जांपल, यू कैन टेक इवन अनदर एग्जांपल. Now you can see if this situation arises,
then our decision is wrong, and wrong decision will lead to several problems. So this is type 1 error. Likewise, you go to the type 2 error. It can be explained with the same example. This is other kind of error that is possible. That is possible occurs when we don't reject a null hypothesis that is true. Just उसके उल्टा है. If hypothesis is false, that is false. Sorry. The other kind of error that is possible occurs when we don't reject a null hypothesis when it is false. First condition क्या था कि null hypothesis true था, but we reject it. Whereas it should not be rejected. Null hypothesis हमारा सही था. रियल में यही सिचुएशन था कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दौरान वो रिजेक्ट हो गया और रिजेक्शन के बाद ये पता चला कि दोनों में इससे कोविड वैक्सीन का डिजीज पर कोई इंपैक्ट नहीं था. इनफैक्ट देयर वाज नो इंपैक्ट. लेकिन नल हाइपोथेसिस भी हमारा यही था कि देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ वैक्सीन ऑन कोरोना वायरस और कोविड-19. लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद पता चला कि उसको रिजेक्ट हो गया और पता चला कि देयर इज इंपैक्ट ऑफ कोरोना वैक्सीन ऑन कोरोना डिजीज. ये टाइप 1 एरर था. टाइप 2 एरर में क्या है कि यू डोंट रिजेक्ट ए नल हाइपोथेसिस दैट इज फॉल्स. इसको यूं भी कह सकते हैं, टेक्निकली हम लोग यही बोलते हैं डोंट रिजेक्ट, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि we accept a null hypothesis when it is false. Hypothesis false है. अगर हम कह रहे हैं there is no significant difference, या हम कह रहे हैं कि वैक्सीन is having no impact on disease, ये सही सिचुएशन नहीं है. इनफैक्ट वैक्सीन is having impact on the disease. लेकिन हमने क्या किया कि हमने रिजेक्ट नहीं किया null hypothesis को. कहने का मतलब हमने मान लिया कि there is no impact of vaccine ऑन डिजीज. ये हमारा रिजल्ट आया हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद. तो आप जानते हैं क्या होगा कि जो वैक्सीन सही था, जिसका इंपैक्ट डिजीज पर था, उसको हम एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, बिकॉज इफ वी गो बाय दिस रिजल्ट देन दिस रिजल्ट की दिस वैक्सीन इज हैविंग नो इंपैक्ट ऑन डिजीज. इन ट्रू सेंस देयर वाज इंपैक्ट. तो जिस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट होना था दैट वाज एक्सेप्टेड. We could not reject it. Yeah, it was not rejected. So this is called type 2 error. Okay. Type 1, I hope it is clear to you all. Yes? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You may Yes, sir. respond by unmuting your mic. Yes, sir. Clear. Okay. Yes, sir. Yes, sir. It is Anybody having clear. any confusion? Okay. No, sir. Now, yes, who is it? किनको प्रॉब्लम बताइए, क्या प्रॉब्लम है? Who said no? No problem, sir. No problem. Okay. सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. Now, okay. Now, how to control these errors? Type 1 and 2 error. इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? इसकी हम चर्चा करेंगे now. At first, we will be talking about controlling type 1 error. For a 95% confidence level, the value of alpha is 0.05. आप जानते हैं कि हम जो हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं उसका हमने 2 लेवल आपको बताया है. Somebody has joined, but I think when we go by the slide, that is not visible to me. Yes, sir. Please zoom it, sir. Sir, इसको zoom करिएगा तो For this, हम लोग को भी वो क्लियर नहीं पता चल रहा है. I think now it is now it would be very difficult for the student to even understand. So
Actually, it is not visible. Then what can I do? Otherwise, I will have to discontinue and again come to the point. Okay, for the sake of this student, I am discontinuing and I will again join it. Who is the student? Arti Kumari, you please come on time. And it is always coming late. You would not be able to understand. And at the same time, it creates a lot of inconvenience. Okay. Now, we know that we have two confidence level. It is 95% level or 99% level. 95% level is also known as 0.05 level, and 99% level is known as 0.01 level. Now, what is this 95% level? Although I have explained to you, but here it is important to explain again. This means that there is 5% probability that we will reject a true null hypothesis. Rejecting a true null hypothesis, the probability of rejecting a true null hypothesis is 5%. If hypothesis is true, and it should not be rejected, but in this case, 5% probability is there that we will reject a true null hypothesis. In the long run, one would be very 1 out of every 20 hypothesis tests that we have performed at this level will result in a type 1 error. Of every 20 tests, it is 5%. So, for every 20 hypothesis tests, one would result in a type 1 error. अगर हम 100 टाइम्स हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे तो 5 टाइम्स ऐसा होगा, 5 हाइपोथेसिस ऐसे होंगे जो कि एरर के शिकार होंगे. कहने का मतलब वो जो है ट्रू हाइपोथेसिस भी रिजेक्ट हो जाएगा. मानते हैं हम केवल 5% लेवल को लेते हैं, सॉरी 95% लेवल को लेते हैं. तो अगर वी कंडक्ट 20 times, if we test hypothesis 20 times, out of every 20 hypothesis tests, एक गलती होगी, 100 में 5 गलती होगी. तो इस गलती को कम किया जा सकता है. हाउ टू रिड्यूस दिस? अगर हम कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दें 95% से we switch over to 99%, तो क्या होगा? For a 99% confidence level, there is 1% probability of rejecting a true null hypothesis. A true null hypothesis जैसे 20 hypothesis टेस्ट करेंगे तो 5 बार गलती होगी. अगर 99% कॉन्फिडेंस लेवल लेंगे तो 100 बार अगर hypothesis टेस्ट करेंगे तो एक गलती होगी. तो कहने का मतलब बाय increasing the confidence level, आप टाइप 1 एरर को कंट्रोल कर सकते हैं. This error cannot be removed at all, whether it is type 1 error or type 2 error. ये एकदम रिमूव नहीं किया जा सकता है, but it can be controlled. प्रॉब्लम को देखते हुए हम ये डिसीजन लेंगे कि टाइप 1 को कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है कि टाइप 2 को कंट्रोल करना जरूरी है. जैसे ऊपर आप ड्रग का देख रहे थे या वैक्सीन का केस देख रहे थे, हम ये डिसाइड कर, अगर मान लीजिए कि ऐसा वैक्सीन जिसका कि एडवर्स इंपैक्ट है कोरोना वायरस पर, उसको एडमिनिस्टर कर देते हैं, तो जाहिर है कि ऐसा हाइपोथेसिस जो है कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है. तो किस ढंग के एरर को हम कंट्रोल, हाइपोथेसिस एरर को कंट्रोल करना जरूरी है.
किस ढंग के एरर को कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। और दिस कैन बी डिसाइडेड बाय लुकिंग एट द प्रॉब्लम, लुकिंग एट द हाइपोथेसिस। जैसे कि हम कहते हैं कि द वैक्सीन हैज नो इंपैक्ट ऑन डिजीज, लेकिन ये पता चलता है वैक्सीन इज हैविंग इंपैक्ट ऑन द डिजीज, लेकिन हमारा जो रिजल्ट आया है दैट इज नो इंपैक्ट। तो एक तो ये सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन है कि वैक्सीन इज हैविंग नो इंपैक्ट, लेकिन ये सिचुएशन सही था लेकिन हमने इसे रिजेक्ट कर दी। इट हैज नो इंपैक्ट बट इट इज नॉट हैविंग इंपैक्ट, ये दूसरा सिचुएशन है। तो किसको कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है? नाउ द रिसर्चर विल टेक डिसीजन एंड अकॉर्डिंगली he or she will control type 1 error or type 2 error. Now it depends upon the hypothesis. By looking at the hypothesis, problem and related hypothesis, you can take decision. भाई यहां पर हम 99% लेवल को ही लेंगे, हम 95 को नहीं लेंगे, बिकॉज इफ 95% लेवल को लेते हैं तो टाइप 1 एरर जो है कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कॉन्फिडेंस लेवल जो हमारा है वो 95 से बढ़ा 95% से बढ़ा के 99% हम कर दें, तो ऐसे हालत में कह सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल 95% को हम 99% एक्सटेंड करें। वी टेक द हाईएस्ट लेवल ऑफ दिस 99%, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, या यूं कह सकते हैं कि 0.05 लेवल ना लेकर के 0.01 लेवल लें। तो 0.05 का वैल्यू 0.01 से जो है छोटा है, तो यहां पर यह कहना पड़ेगा 0.5 लेवल को डिक्रीज करके 0.01 पर ले जाएंगे। ऑल्दो इट इज हायर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन अगर 0.05 और 0.01 की आप बात करेंगे तो यहां देखते हैं ये रिड्यूस लिखना पड़ेगा, लेकिन 95% या 99% कॉन्फिडेंस लेवल को दैट वुड बी इंक्रीज टू 99% कॉन्फिडेंस लेवल, और यू कैन से कि 0.05 कॉन्फिडेंस लेवल विल बी रिड्यूस टू 0.01 लेवल। बात एक ही है, तो आप हायर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को हम लेंगे तो टाइप 1 एरर जो है कंट्रोल हो जाएगा। नाउ हाउ टू कंट्रोल टाइप 2 एरर? टाइप 2 एरर को कैसे कंट्रोल करेंगे? इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स हम ले सकते हैं। वी कैन टेक सम मेजर्स। फर्स्ट, इंक्रीज द सैंपल साइज। One of the simplest method to increase the power of the test is to increase the sample size used in a test. Larger sample size increases a chance to compute, to capture the differences in the statistical test as well as increasing the power of the test. अगर हम सैंपल साइज अगर हम बड़ा करते हैं तो टाइप 2 एरर की संभावना कम है। पहले भी हमने कहा था, जहां तक एरर का सवाल है, इफ यू हैव ए बिगर साइज ऑफ सैंपल तो एरर की संभावना कम होती है। तो टाइप 2 एरर जो है, एंड व्हाट इज द टाइप 2 एरर? नॉट रिजेक्ट ए नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। अगर हाइपोथेसिस फॉल्स है तो उसको रिजेक्ट नहीं करते। तो इसको कंट्रोल करने के लिए पहला है कि इंक्रीज द सैंपल साइज। दूसरा क्या? इंक्रीज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल, जो अभी बात कर रहे थे। वहां पर हमने क्या किया था कि पॉइंट था, और यूं कह सकते हैं 95% लेवल से हम 99% लेवल पर गए थे, इंक्रीज किया था। अगर परसेंट के टर्म में बोले तो, और अल्फा के टर्म में बोलेंगे 0.5 से डिक्रीज होकर के 0.01 पर हम लाए थे। और 0.01 जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है हमारे लिए, उसी लेवल पर हम जो है हाईएस्ट लेवल है रिजेक्शन का, वहीं वहां अगर रिजेक्ट करते हैं तो हाईएस्ट लेवल है वो।
सिग्निफिकेंस मेजर करने का। अब ये जो है कि इसमें क्या करते हैं कि अनदर मेथड इज टू चूज ए हायर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का हायर लेवल हम लेते हैं 0.05 पर जाते हैं, या यूं कहें कि इसको सिग्निफिकेंस के लेवल को 99 से हम 95 पर जाएंगे, वहां डिक्रीज करेंगे इस टर्म में, और 0.01 के बजाय 0.5 पर ही रहते हैं, 0.5 पर ही रहते हैं। फॉर इंस्टेंस ए रिसर्चर में चूज ए सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ 0.1 इंस्टीड ऑफ द कॉमनली एक्सेप्टेड 0.05। 0.05 जो है वो आप जानते हैं कि वो सबसे जो है कि वो हमारा लोएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ठीक है, और 0.01 जो है वो है हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेकिन मान लीजिए हम एक लेवल चुनते हैं 0.1, instead of the commonly accepted 0.05 level. The higher significance level implies a higher probability of rejecting the null hypothesis. अगर हम 1.1 लेते हैं, 0.1 मीन्स कि 10 बार अगर हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे तो एक रिजेक्ट हो जाएगा। 0.05 में क्या था कि 20 बार अगर हम करेंगे हाइपोथेसिस टेस्ट तो एक बार रिजेक्ट होगा, और 100 में 5 टाइम्स होगा। यहां पर क्या है कि 10 में ही एक बार हो जाएगा। और यहां हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए कि हाइपोथेसिस फॉल्स है, फॉल्स हाइपोथेसिस को वी डोंट रिजेक्ट फॉल्स हाइपोथेसिस, हमको हाइपोथेसिस का रिजेक्शन बढ़ाना है। तो रिजेक्शन बढ़ाने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, हमको 0.05 से ऊपर जाना पड़ेगा। 0.01 हाईएस्ट है जो सबसे कम है, 0.01 100% लेवल, 0.05 दैट इज 5% लेवल, और हम अगर 0.1 लेते हैं तो रिजेक्शन की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे हमारा जो नॉर्मल हमने बताया कि हम किसी भी हाइपोथेसिस को 0.05 या 0.01 लेवल पर ही रिजेक्ट करते हैं। 0.05 लेवल जो है दैट इज आवर लोएस्ट लेवल, एंड 0.01 जो है दैट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और अगर आप वैल्यू देखिएगा 0.05 और 0.01, 0.05 का वैल्यू बड़ा है 0.01 से, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसको डिक्रीज करें। अगर हायर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं तो अल्फा का वैल्यू डिक्रीज होगा। अगर 100% बोल रहे हैं, 99% लेवल बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं 0.01 लेवल, तो 0.01 0.05 से छोटा है, इसलिए हम कहते हैं अल्फा लेवल को कम करते हैं। 0.1 0.05 से बहुत बड़ा है। तो अगर 0.1 ये समझने के लिए है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 0.1 लेवल पर हम किसी को रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्शन तो ज्यादा बढ़ जाएगा। 10 बार हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तो एक रिजेक्ट होने की संभावना, और हमको चाहिए रिजेक्शन लेवल को बढ़ाना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। टाइप 2 एरर में क्या है कि वी एक्सेप्ट फॉल्स हाइपोथेसिस। The larger probability of rejecting the null hypothesis decreases the probability of committing type 2 error when the probability of committing a type 1 error increases. लेकिन एक चीज है, ये तो आप समझ गए होंगे कि 0.05 पर 20 में एक रिजेक्शन की संभावना है, 0.01 लेवल पर 10 में ही एक रिजेक्शन की संभावना है। तो रिजेक्शन की संभावना जब बढ़ेगा, और टाइप 2 एरर इसलिए होता है कि हम रिजेक्ट नहीं कर पाते, जो फॉल्स हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट नहीं कर पाते, जबकि वो रिजेक्ट हो जाना चाहिए।
हम कह रहे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ये रिजेक्ट हो जाना चाहिए बिकॉज देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो रिजेक्शन लेवल हमको बढ़ाएंगे तभी हमको ये एरर कम होगा, कम होने की संभावना, चांसेस आर देयर। लेकिन इसमें क्या है कि फिर टाइप 1 एरर बढ़ने की संभावना है। टाइप 1 एरर में क्या है कि रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। जब रिजेक्शन का लेवल बढ़ाएंगे तो ए बढ़ने की संभावना है। तो आप यही देखिए, पूरा पूरा जो होल एक्सरसाइज इज अबाउट रिजेक्टिंग एंड नॉट रिजेक्टिंग। ट्रू हाइपोथेसिस रिजेक्टिंग और नॉट रिजेक्टिंग, फॉल्स हाइपोथेसिस रिजेक्टिंग और नॉट रिजेक्टिंग। If hypothesis is in fact true, it should not be rejected. अगर दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है, यही हमारा हाइपोथेसिस है, तो अगर ये सही है, इनफैक्ट सही है, यही सिचुएशन है इन रियल सेल्स, तो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये हाइपोथेसिस, ये टाइप 1 एरर हो जाता है। और यहां पर रिजेक्शन की संभावना बढ़ा रहे हैं, रिजेक्शन की संभावना बढ़ा रहे हैं, टाइप 1 एरर के बढ़ने की संभावना बढ़ गई। और रिजेक्शन को अगर कम आप करते हैं तो टाइप 2 एरर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां रिजेक्शन हमको चाहिए। हाइपोथेसिस जो है, यहां पर हाइपोथेसिस फॉल्स है, रियल में फॉल्स है। हमारा हाइपोथेसिस है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, लेकिन इनफैक्ट डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। इन सच ए सिचुएशन, जिस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट होना चाहिए हम रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो रिजेक्शन का लेवल हम बढ़ाएंगे तो जाहिर है कि ये एरर कम होगा। तो एक चीज है कि ये दोनों एरर जो है, इसको रिमूव आप नहीं कर सकते, यू कैन कंट्रोल इट। आप सैंपल का साइज बढ़ा दीजिए, आप ये देख लीजिए कि कौन सा एरर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्रोल करना। अगर टाइप 1 एरर को कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है तो यू टेक हायर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 100% लेवल को आप लीजिए। अगर आपको लगता है कि टाइप 2 एरर इंपॉर्टेंट है, यू गो टू द पॉइंट 0.5 लेवल और 95% लेवल, इवन यू कैन गो हायर। जैसे यहां पर एग्जाम, लेकिन हम जाते नहीं हायर, वो उसी में हम सिलेक्शन चॉइस हम कर सकते हैं कि हम 0.01 को छोड़ करके वी विल गो टू 0.05। This is the this way you can control type 2 error. Now see this slide which explain the same things which I have already discussed. The type 1 and 2 errors are part of the process of hypothesis testing. Although errors can't be completely eliminated, we can minimize one type of error. We can minimize any one type of error, because minimizing one type of error leads to the increasing of another type of error. Typically, when we try to decrease the probability of one type of error, the probability of other type increases. Type 1 and 2 errors can be controlled to some extent, but it can't be removed. Level of significance that we have selected has a direct bearing on type 1 and 2 error. जो significance level है उसी को घटा बढ़ा करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए जो रिसर्चर हैं, they should always assess the impact of type 1 and 2 errors on their decision and determine the appropriate level of statistical significance. आप ये देख लीजिए कि टाइप 1 या 2 एरर जो है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। आप जो डिसीजन लेंगे, आपके डिसीजन पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, एंड अकॉर्डिंगली यू यूज द कॉन्फिडेंस लेवल। Now I'd be making discussion on one-tailed and two-tailed tests. This is very important concept because when your hypothesis is bidirectional, it is having two directions. Suppose
when you talk of null hypothesis. Null hypothesis has no defined direction. Rejection is possible either side, higher side or lower side. लेकिन अगर हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस लेते हैं तो देयर इज सेंस ऑफ डायरेक्शन, as I told earlier. Suppose IQ of athlete is higher than IQ of footballer, तो ये सेंस ऑफ डायरेक्शन एक साइड में जा रहा है, तो यहां पर रिजेक्शन एक ही साइड में होगा। तो जाहिर है कि इस आधार पर जो हम हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करेंगे उसका सिग्निफिकेंस का लेवल भी बदल जाएगा। So now see this slide. The tail refers to the end of distribution of the test statistic for the particular analysis that you are conducting. For example, a t-test uses the t-distribution. आप जानते हैं t-test जो है वो t-distribution का इस्तेमाल करता है। हमने आपको t-table भी दिखाया है और t का जो distribution table है उससे भी वाकिफ है आप। The distribution of test statistic can have one or two tails depending on its shape. Distribution, when you talk of distribution of test statistic, you know difference between statistics and parameter. The statistics is used for the values related to sample and parameter is used values related to population. इसीलिए हम कहते हैं you must be regular. In the first period, we tried to explain what is parameter, what is statistic. So the distribution of the test statistic can have one or two tails depending on its shape. Symmetrical distribution अगर आपका है, t distribution जो है बेसिकली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्योंकि ये पैरामीट्रिक टेस्ट है और पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या होता है, पॉपुलेशन नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का कर्व आपने देखा होगा। अगर नॉर्मल पॉपुलेशन के स्कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बेल शेप्ड कर्व होगा, जो कि हमने आपको कई बार दिखाया है, पिछले क्लास में भी आपको दिखाया था फॉर सर्टेन पर्पस। तो वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट हैज टू टेल्स और काई स्क्वायर टेस्ट का जहां इस्तेमाल करते हैं वहां पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं होता है, स्क्यूड पॉपुलेशन है। एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग ज्यादा है, तो अगर पॉपुलेशन स्क्यूड है तो उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओनली वन टेल, एक ही साइड में सारे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो आप यूं जानिए, आगे हम ग्राफ से आपको दिखाएंगे कि अगर पॉपुलेशन नॉर्मल है और मान लीजिए 0.05% लेवल पर हम रिजेक्शन करना चाहते हैं या 5.05 लेवल पर हम सिग्निफिकेंस देखना चाहते हैं किसी हाइपोथेसिस का, तो 0.505 मींस 95% लेवल और 0.05 का हाफ जो है एक साइड में जाएगा और हाफ दूसरे साइड में जाएगा। 0.025 will be rejected right side, 0.025 that will be rejected left side. अभी हम लोग देखेंगे इसको। तो यहां पर जो है कि वो रिजेक्शन आइदर साइड में पॉसिबल है। 5% अगर रिजेक्शन लेवल हमारा है, 5% लेवल, 5% अगर करते हैं 95% लेवल में 5% का रिजेक्शन हो रहा है। When we say 95% level means rejection is 5%. तो 2.5 either side में रिजेक्ट होगा। अगर वो असिमेट्रिकल है, नॉन पैरामीट्रिक, सॉरी, अगर पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है, पॉपुलेशन स्क्यूड, and in case of skewed population and the population is not known to be normal, generally we use non-parametric test
तो उसमें एक ही साइड में 5% रिजेक्शन होगा. It won't be divided either side. It would be only either on right side or either on left side. If you read this table, you might get some more clarity. On what points we are making comparison? First is the meaning. What is the meaning of one-tailed test? It is a statistical hypothesis test in which hypothesis has a direction and known as a one-tailed test. Hypothesis has direction. अगर आप कहते हैं कि हमने कई एग्जांपल आपको दिया था, लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल है, सपोज कि अचीवमेंट ऑफ गर्ल्स इज हायर देन बॉयज, so it's one-tailed. It has one direction. This hypothesis are only one direction. So a statistical hypothesis test in which hypothesis has a direction. Hypothesis has clear-cut direction that women students having higher achievement or higher IQ than men students or male students. So here hypothesis has a direction and known as one-tailed test. यहाँ पर जिस टेस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट जो होगा उसमें one-tailed टेस्ट लगेगा. Another is this green one, a significance test in which hypothesis has no direction, like null hypothesis, there is no direction. Group A does not significantly differ with group B. A और B में कोई difference, there is no significant difference between A and B. There is no significant difference between the IQ of male and female students, rural and urban students. Such hypothesis is null hypothesis and having no direction. कोई डायरेक्शन नहीं है इसका. मेल और फीमेल स्टूडेंट्स का IQ एक दूसरे में कोई डिफरेंस नहीं है. देयर इज नो डायरेक्शन. इसलिए इस केस में दोनों साइड में हो सकता है कि उसका जो लोअर और अपर साइड, दोनों साइड में हमको जो है रिजेक्शन लेना पड़ेगा. तो इट्स कॉल्ड टू-टेल्ड टेस्ट. ये टू-टेल्ड टेस्ट लिए है कि दोनों टेल इसके खुले हुए हैं. इसमें जो आइदर साइड हो सकता है, मेल का IQ फीमेल से बेहतर हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो हम कह रहे हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंट, या दोनों में कोई अंतर नहीं है. दिस ओपन बोथ साइड. दिस टू-टेल्ड टेस्ट. नाउ हाइपोथेसिस का जो इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, one-tailed टेस्ट. अगर हमारा हाइपोथेसिस में एक ही डायरेक्शन है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, देन वी यूज one-tailed और one-end टेस्ट. दिस one-tailed और one-end हाइपोथेसिस, one-tailed हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करते हैं. और अगर कोई डायरेक्शन नहीं है, नल हाइपोथेसिस है, तो टू-टेल्ड और टू-एंड्स है. इसमें हाइपोथेसिस में टू-एंड होगा, टू-टेल्ड होगा. देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस. आइदर साइड में डिफरेंस हो सकता है, नहीं हो सकता है. रीजन ऑफ रिजेक्शन आइदर लेफ्ट और राइट. किस रीजन में रिजेक्शन होगा, किस भाग में? लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है. एक ही तरफ होगा, आइदर लेफ्ट और राइट, वन डायरेक्शनल में. और यहाँ क्या है, बोथ लेफ्ट एंड राइट, दोनों तरफ रिजेक्शन होगा. There is a relationship between variables in single direction. इसका डिटरमिनेंट्स क्या है, डिटरमिन्स क्या करता है ये? इस डिटरमिन्स दैट कि वेरिएबल के बीच जो रिलेशनशिप है वो सिंगल डायरेक्शन में. जैसे कि IQ ऑफ एथलीट इज लोअर देन IQ ऑफ फुटबॉलर, एक सिंगल डायरेक्शन में, लोअर और हायर. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि IQ ऑफ एथलीट इज नॉट हायर देन, स्टिल देयर इज डायरेक्शन, नॉट हायर देन, इक्वल और लोअर. और यहाँ क्या है कि देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन आइदर डायरेक्शन. दोनों साइड में हो सकता है, जो बात अभी कह रहे हैं. इफ देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस हम कह रहे हैं, तो डिफरेंस हो भी सकता है, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड किधर भी हो सकता है, ये मुझे नहीं मालूम. नाउ रिजल्ट के बेसिस पर कंपैरिजन करेंगे तो ग्रेटर और लेस सर्टेन वैल्यू, और यहाँ पर ग्रेटर और लेस देन सर्टेन रेंज ऑफ वैल्यूज. यहाँ पर जो है
ग्रेटर और लेस देन सर्टेन वैल्यू में ग्रेटर और लेस देन सर्टेन वैल्यू होगा रिजल्ट। यहाँ पर ग्रेटर और लेस देन सर्टेन रेंज ऑफ वैल्यूज, ये यहाँ पर एक सर्टेन वैल्यू है जिसको क्रॉस करना है वन डायरेक्शनल में। यहाँ क्या रेंज ऑफ वैल्यू है, यहां से यहाँ के बीच क्योंकि अदर साइड में है तो एक रेंज ऑफ वैल्यूज है, उस रेंज ऑफ वैल्यू को क्रॉस करना है, उससे बड़ा होगा या छोटा होगा, लेकिन यहाँ एक सर्टेन वैल्यू होगा, एक खास वैल्यू होगा जिससे ग्रेटर और लेस होगा। तभी हम रिजल्ट देखने के लिए वी हैव टू सी ए पर्टिकुलर वैल्यू। यहाँ पर क्या है कि रिजल्ट देखने के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए वी हैव रेंज ऑफ वैल्यूज, इसको हम आगे देखेंगे और भी हमारा क्लियर होगा कि रेंज ऑफ वैल्यू जब दोनों साइड में है तो वी विल मेक ए रेंज यहां से यहां तक। इसमें क्या एक ही साइड में है, सो देयर इज ए पर्टिकुलर वैल्यू। नाउ वी ट्राई टू एक्सप्लेन टू टेल टेस्ट फर्स्ट। A two-tailed test is appropriate to determine any difference between the groups being compared. For instance, if group A scored higher or lower than group B, then a two-tailed test can be used. अब जैसे ग्रुप A का स्कोर जो है B से हायर या लोअर कुछ भी हो सकता है, तो ये होगा टू टेल टेस्ट। डिफरेंस कैन गो आइदर साइड, हायर और लोअर साइड बिटवीन द ग्रुप्स being compared. This is a two tail test. Difference is possible on either side. When there is null hypothesis, then difference is possible either side, and here we can use two tail test. This is because two-tailed test uses both the positive and negative tails of the distribution. In other words, it tests for the possibility of positive or negative differences. तो आप सिंपली इतना समझ सकते हैं कि when we have null hypothesis, where we say that there is no significant difference between two variables, या दो मीन के बीच में या दो ग्रुप के मीन के बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, तो आप ये समझ सकते हैं ये डिफरेंस आइदर साइड में जा सकता है, ये हायर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है। तो ये जो है दिस इज ओपन कि हायर भी होगा लोअर भी होगा। तो यहां पर जो टेस्ट है टू टेल टेस्ट, और वन टेल टेस्ट क्या है, यहां पर डिटरमिन ए डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। यहां जो आपका हाइपोथेसिस है वो कहता है कि देयर इज वन ग्रुप इज हायर देन सुपीरियर देन अदर और वन ग्रुप इज इंफीरियर देन अदर। अगर हम कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन हैज ए पॉजिटिव इम्पैक्ट in controlling COVID-19, we already direction is positive impact, हम पहले ही मान रहे हैं there is positive impact। ये हमारा हाइपोथेसिस जो है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, और यहां पर क्या है कि एक ही डायरेक्शन में हम देख रहे हैं डिफरेंस जो है एक ही डायरेक्शन में है, या यहां पर जो डिसीजन है जो हाइपोथेसिस जो हमारा सॉल्यूशन गेस सॉल्यूशन है, दिस इज ऑन वन डायरेक्शन। सो इफ वन इज only interested in determining if group A scored higher than group B and not interested in possibility of group A scoring lower than group B, then one tail test can be used। अगर मान लीजिए कि आप इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि A scored higher than B, या मान लीजिए आपने कोई मेथड इजाद किया, you discovered certain teaching method, now you say you assume that your method is superior and you construct one hypothesis कि method A is higher than method B on achievement, or method A provides higher achievement than method B. So this is one directional, you have only one direction, you are not interested in that कि method
A, which you have developed, is lower on certain parameter than the other method. You are interested only in higher side, not lower side. Suppose group A is scored higher than group B. We are only interested in that group A is scored higher than B. We are not interested in that group A is scoring lower than B. तो ये वन टेल टेस्ट है. ये टेस्ट कैन बी यूज्ड. यहाँ पर जो hypothesis is this having single direction, either this side or that side, not open to either, not open to either side. It is open to one side only. देखिए, अगर आप अगर एक खास साइड में कोई डिफरेंस प्रिडिक्ट करते हैं एंड देयर इज रीजन बिहाइंड दैट, your results are more likely to be significant for a one-tailed test. अगर आप जो डिफरेंस प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा डेवलप किया हुआ मेथड दूसरे मेथड से बेहतर है एंड यू हैव सफिशिएंट रीजन टू बिलीव, तो ऐसे हालत में वन टेल टेस्ट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इस केस में वन टेल टेस्ट appears to be more powerful than two tail test. एक पर्टिकुलर अगर मान लिया 0.05 या 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल अगर हम लें, तो किसी भी पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस लेवल के लिए अगर यू हैव सफिशिएंट रीजंस टू बिलीव दैट योर मेथड इज important or it's better than others, so it appears to be more statistically powerful than two-tailed test, whereas where you say that there is no significant difference between the two, because you have developed your method, you have constructed a method and you have sufficient reason to believe that the hypothesis will not have to be rejected. So in this case, without not taking null hypothesis, take the positive hypothesis, directional hypothesis, and that is there is sufficient reason to take directional hypothesis, and that will provide you the more what you call more statistical power than two-tailed test. Now two-tailed test का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, टी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है दिया हुआ, and I wanted to enlarge it. It is not getting enlarged. Yes. See here. Make or bigger. See, now this is two-tailed T distribution. Now the rejection level here is alpha level 95%. It is 0.05 level ये rejection level है. और suppose for the मान लीजिए degree of freedom 20 है, and I've already told you how to calculate degree of freedom. I've already suggested you. And in the third part of the hypothesis testing, I will be giving you the concept of degree of freedom. अभी तो हम जानते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करना और उसके हिसाब से हम डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली इनफैक्ट व्हाट डज इट मीन, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये थर्ड पार्ट में, इसके बाद जस्ट आफ्टर दिस second part we are doing, and in third part I will be explaining you, giving you the concept of this degree of freedom. Now suppose this is the 0.05, rejection is this side 0.025 and 0.025. This 0.05 was divided into two, and half is right side and half is left side. See here, and this is, you know, this is the mean,
And measure the distance in standard deviation, 1 sigma, 2 sigma, that is also called Z score. The standard distance, 1 sigma, 2 sigma. So this shows the standard distance, 2.086, and here 2.086 plus 2.086 plus 2 minus 2.086. This is the rejection level. You can say here this is at suppose at this place will come 1 sigma. At this place will come 1 sigma, 2 sigma. So this is 2.86. Here minus 2.86. The rejection is both sides. You can see the value of this 0.025 or 0.025. For degree of freedom 20, you can see the value of this and this. This will come this much. Now one tail test. One tail test rejection is only one side. See here. 0.01, 0.05, this rejection is only one side. See this graph. And T value is this much. Here T value is between this and this. This plus and this minus. Either side. This T value is lower than this. See here. Either this side or this side. Minus 1.725 or is this side. Now let us see a graph. Then it will be more clear to you. Just I am attaching another graph to it. No. Yes. Yes. Just I am finding that table yesterday used. Yes, I got it. See here. For one tail test and for two tail test, this 5% and this degree of freedom 20, this 2.086. For one tail test, this 5% is
1.725। अभी जो पीछे आपको ग्राफ दिखाया था उसमें आपने देखा होगा कि जो जिसमें कि दोनों साइड रिजेक्शन था टू टेल टेस्ट में, वहां टी का जो वैल्यू जो दिखाया गया था दोनों एंड पर, टी का डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो 20 के लिए दिस इज 2 पॉइंट, नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, अब शायद दिख रहा होगा, ये देखिए दिस Yes, इज sir. टू टेल टेस्ट के लिए नाउ इट्स 5% लेवल। 5% लेवल पर अब चलिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 20 है, देन इट कम्स 2.086, isn't it? जो अभी आपने ग्राफ में देखा था कि आइदर साइड था 2.086, ये जो रिजेक्शन है दोनों साइड में 0.085 होगा, आइदर साइड हो सकता है, दिस साइड और दैट साइड, बोथ साइड। व्हेन वी टेक वन टेल टेस्ट, ये 5% लेवल फॉर वन टेल टेस्ट, दिस इज फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 20, नाउ इट इज 1.725, एक ही साइड में होगा और ये रिजेक्शन का लेवल होगा 1.725। अगर आपका टी का वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू वन टेल टेस्ट के लिए इससे बड़ा हो जाता है, 1.725 से बड़ा है, तो यू कैन रिजेक्ट हाइपोथेसिस एट 5% लेवल। 1% लेवल के लिए क्या करेंगे आप, वन टेल्ड के 1% लेवल पर आप चलिए, दिस इज 1% लेवल। वन टेल टेस्ट का 1% लेवल जो है वो कौन सा कॉलम है, थर्ड। ये देखिए, ये वैल्यू 2.528 से अगर आपका कैलकुलेटेड टी का वैल्यू बड़ा हो जाता है या इसके बराबर हो जाता है तो नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट कर सकते हैं। हमने कहा था कि इफ यू आर हैविंग ए बिगर सैंपल, इन दैट केस देयर इज नो नीड टू see the what you call to go through टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टी टेबल में जाना जरूरी नहीं है, लेकिन पहले आप इसको देख लीजिए कि अगर वन टेल टेस्ट है तो ये जो है ये वैल्यू 5% लेवल पर फॉर 20 डीएफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बदलेगा तो वैल्यू बदलेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर जो इंस्टेंस एग्जांपल दिया हुआ है उसमें है 1.725 एंड फॉर 1% लेवल this is 2.582. Likewise, for two tail test का अगर 5% लेते हैं तो this value will come around 2.86. This is the value. और 1% लेवल पर अगर हम जाते हैं तो this is fourth column, two tail test 1%. So this value comes this much. In two tail test, the value is little bit higher than one tail test. यहां देखिए वन टेल टेस्ट 1% का इतना है, इसके 1% का इतना है, इसके 5% का इतना है, इसके 5% का इतना है। तो ये टेबल हमने इसलिए दिखाया है कि आप यहां देख लीजिए रेंज, जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने दिखाया था उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। नाउ कम टू the first table we are using. Yes. See here. This is 5% लेवल पर आइदर साइड रिजेक्ट होगा एंड दिस कम 0.086 दिस साइड, 2.086 दिस साइड। ठीक है, इधर देखिए दिस इज 1.725 दिस साइड, आइदर दिस साइड और आइदर दिस साइड। नाउ अगर हमारा सैंपल बड़ा है, तो जाहिर है कि बड़े सैंपल में आप देखिएगा, जब आप डीएफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को 60, 70, 80 में देखिएगा, देयर इज बहुत कम डिफरेंस होता है।
अगर 30 से ऊपर हम चलते हैं तो 1.96, अगर मान लीजिए 2 टेल टेस्ट और 1 टेल टेस्ट, 2 टेल टेस्ट के लिए 1.96 लेवल पर हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। 5% लेवल पर जो है 1.96, और जो 99% लेवल या 0.01 लेवल जो है उस 2.58%, 58 पर हम अगर हमारा टी का वैल्यू 1.96 से बड़ा है तो 5% लेवल पर रिजेक्ट हो जाएगा या 0.05 पर रिजेक्ट हो जाएगा। एंड इफ इट इज ग्रेटर देन, लार्जर देन 2.58, देन ये 1% लेवल या 99% लेवल या 0.01 लेवल पर रिजेक्ट हो जाएगा। वहां पर टी टेस्ट में आप नहीं भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज कि एज वी ग्रेजुअली सैंपल साइज इज इंक्रीज, सैंपल साइज बड़ा होगा तो जाहिर है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ज्यादा होगा। तो बड़े डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वो वैल्यू में बहुत कम अंतर है। तो वी कैन टेक दिस वैल्यू एंड वी कैन सिंपली रिजेक्ट null hypothesis. Although practically we always use t-test, but t-test is very important when you go for the smaller sample, and you should do it. In a smaller sample, t-test is almost required. It is you can say it is very mandatory or inevitable. But if sample is big, then you can buy this. It is 1.96 sigma. 1.96 का जो वैल्यू है 1.96 पर हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं और 2.58 पर रिजेक्ट कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंगली 1 टेल टेस्ट के लिए वैल्यू है जो कि राइट नाउ आई थिंक इट इज 1.64 or 2.38, something like that. You can go through the book and you can check it. In the next period, we would be discussing this when sample is bigger. In that case, without going into t-test, how we can reject null hypothesis, and at the same time, we will be giving you the concept of degree of freedom. And by giving these two concepts, then hypothesis of testing, the whole chapter would be complete, and then would be taking up the new issue, new topic. Okay. Thank you. In fact, C10. In fact, right now we are discussing or we are just teaching C12. In fact, this C10 is about dissertation, and it's very easy. So before we will take the difficult, what you call not difficult, rather what you call that needs a lot of statistics or more clarity. So we will cover most of the issues of C12, and then we will switch over to C10. We won't be going simultaneously for C10 and C12. Every C10 class will be taken as C12 class, and once you have done all the important issues in C12, तब हम लोग C10 पर चलेंगे, because C10 is about dissertation, and there you have to basically talk of practical conditions. वो ये देख करके वो पेपर बनाया गया है कि अगर डिसर्टेशन आप करते हैं तो किन प्रैक्टिकल कंडीशंस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसके कई चीज़ों का बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट वहाँ है कि एथिक्स कैसा हो, व्हाट काइंड ऑफ एथिक्स रिसर्चर शुड अडॉप्ट व्हाइल डूइंग रिसर्च, व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू, suppose you have to take interviewer into confidence. It is not like that ki just you start the interview. It might take 1 week. In some cases it might take few weeks. In some cases it take months. Suppose you wanted to collect data from a tribe, then there are various ways. Sometimes you might have to stay there for months, and then you have to get familiar with you. Only then they will share their if you wanted answer on some private questions, private life, related to private life. So there are certain practical aspects, application part, and that doesn't involve any statistical and other procedures. So we will be taking that later, and that will require less time. If we do all these things, then it will be very quite easier to discuss issues related to dissertation. Okay. Thank you very much. If you have any queries, you can have right now, so that we can explain it.
अगर आपको लगता है कोई चीज़ पूछनी है या कोई बात समझ में नहीं आई तो थोड़ा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हमारी एक मीटिंग है लेकिन फिर भी हमारे पास अभी है, हमारे पास 5 मिनट्स है। अब बताइए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। हमने आपको 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 समराइज कर दें कि हमने आपको जो है स्टार्ट किया था, हमने आपको टाइप 1 और टाइप 2 एरर का कॉन्सेप्ट दिया, and we also discussed how to control these errors, although it is not possible to remove type 1 और 2 errors fully। और कंडीशंस ऐसे हैं हमारे पास जो हम मेजर्स को कंट्रोल मेजर जब लेते हैं तो एक को जब हम कंट्रोल करते हैं दूसरे को बढ़ने की संभावना होती है। तो हम देखते हैं कि किस एरर को कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है, और ये डिसीजन जो है कोई नहीं दे सकता। एक रिसर्चर अपने हाइपोथेसिस और प्रॉब्लम को देख करके डिसीजन दे सकता है कि इस केस में टाइप 1 ज्यादा जरूरी है। तो टाइप 1 ज्यादा जरूरी है कंट्रोल करना, तो जाहिर है कॉन्फिडेंस लेवल जो है 0.5 नहीं लेकर के 0.05 ना लेकर के 0.01 या 95% या 5% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हम लेंगे। तो जो अल्फा का जो वैल्यू है वो 0.05 से घटा करके 0.01 पर ले जाएंगे, हायर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे ले जाएंगे। और वैसे वर्षा फिर टाइप 2 एरर है, वहां पर हम क्या करते हैं कि वहां पर हम रिजेक्शन की संभावना बढ़ाते हैं। रिजेक्शन की संभावना जब बढ़ाते हैं तो अल्फा का लेवल जो है वो चेंज करते हैं, 0.05 से भी बढ़ाते हैं। वैसे 0.5 से हम बढ़ा नहीं सकते, हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का लास्ट लिमिट है, लेकिन हमने एग्जांपल लेकर के बताया कि अगर 0.1 लेवल हम ले लेते हैं तो रिजेक्शन की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जब रिजेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी तो टाइप 2 एरर जो है जाहिर है कम हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद आपको बताया कि जो हाइपोथेसिस जो डायरेक्शन होते हैं, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस या बाई डायरेक्शनल हाइपोथेसिस या फिर वन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल मीन्स दोनों, बाई डायरेक्शनल कह सकते हैं। हम कहते हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इट मीन्स डिफरेंस कैन गो अदर साइड। तो ये जो है इसमें ये 2 टेल्ड हाइपोथेसिस जो है 2 टेल्ड टेस्ट का इस्तेमाल यहाँ करते हैं। डायरेक्शनल है तो 1 टेल्ड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और आपने देखा कि 1 टेल्ड टेस्ट में जो टी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक ही तरफ होगा, एक ही तरफ रिजेक्शन का लेवल है, इसलिए टी का वैल्यू जो है आप देखें 1.7 आया। और सेम लेवल पर जब दोनों साइड रिजेक्शन करते हैं तो वैल्यू जो है +2.0 समथिंग, प्लस माइनस के बीच में आया। तो दोनों को हमने दोनों की चर्चा की कि व्हाट इज टाइप एरर एंड 1 टेल 2 टेल टेस्ट। और आगे जो हम लोग एक ये देखेंगे कि अगर हमारा सैंपल बहुत बड़ा हो तो उस हालत में हम अगर टी टेस्ट में ना भी जाते हैं तो स्टिल वी कैन रिजेक्ट null hypothesis or hypothesis on basis of certain value। For 2 tail test or 1 tail test where we can take different values। और हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम की चर्चा करेंगे, क्योंकि व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ये जानना बहुत जरूरी है। इस्तेमाल तो आप कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का, लेकिन इससे क्या समझ बनती है वो हम करेंगे। और उसके बाद जो है कि we will say goodbye this issue, this chapter, and we will be entering into new chapter। तो अगर कोई क्वेरी हो तो आप बता दीजिए, या तो फिर इसको आप अच्छे से पढ़िए और नेक्स्ट पीरियड में इन द बिगिनिंग आई विल बी टेकिंग द क्वेरीज। जो आपके क्वेरीज होंगे वो हमें बताएंगे कि आप एक बार आपको क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, और तब उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू। Only overall 13 persons have joined out of 50, and this is not a not a what do you call this? This is a good thing, क्योंकि अब इसी तरह क्लासेस चलेंगे और आई डोंट थिंक कि इस तरह क्लास लेने में खास करके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर कोई परेशानी है। आई थिंक कि आप अपने घर में रहते हैं, अपने अब ज़्यादा काम कर सकते हैं, आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, आपको आप मतलब कहीं भी जाने आने की परेशानी से बच जाते हैं। और एट द सेम टाइम कि आपको जो टेबल्स एलैबोरेशंस है वो आपके सामने अब रखते ही है जैसे क्लासरूम में रखा जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ परेशानी है। Even if he continues for months, for PG students it's hardly any। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि जो
turnover है, because now attendance is with me. Now suppose कि the same system continues for years, so it's not there कि you can't get what you call benefit of this COVID-19 for all the time. At least I request all the students to join the class in full number, and if you can't be doing that, then you would be at loss. And I told earlier कि अगर मान लीजिए कि आप कहीं भी आप class has a meaning, or its meaning is that कि you can discuss over the things, whatever problem you are having, you can discuss. जो भी problem है उसको हम discuss करेंगे, ज़्यादा clarity बनती है. At the same time जो है कि आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे हम आपके साथ कनेक्ट हुए हैं, आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होकर के डिस्कस कर सकते हैं. तो मुझे तो लगता है कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा अच्छा है कि आप जो है कि क्लास करें फुल नंबर में, क्योंकि जब हम ये करते हैं 4th सेमेस्टर क्लास करते हैं तो इट गोज अप टू 35 to 40. आई डोंट नो व्हाई दिस 3rd सेमेस्टर, उनका तो अब खत्म हो रहा है, still they come in full number. So now you ask your friends to attend classes, and if you don't attend class, देखिए, one thing is that I don't believe in punitive. You don't attend class तो you won't be sent up. हम तो 2 साल इतने 3rd सेमेस्टर में है, कितना बार मैं अपना व्यूज रख चुका हूँ कि anybody cannot draw you or pull you to the classroom. क्लासरूम में खींच करके लाना जरूरी नहीं है. It's your interest. If you are interested in the curriculum, if you are interested in the teacher education, if you are having interest to be to work in the area of work or teach or doing research in the area of teacher education, definitely you would be you will attend class, you would be doing your job regularly. क्योंकि कोई भी डिग्री जो है, getting degree is very easy. I have told you very early in the beginning, even in orientation. आप कोई भी एग्जाम दें, आप 10 दिन पढ़ करके एग्जाम पास कर सकते हैं, because our subject is very connected to the common people. इसमें ढेर सारी ऐसी चीजें हैं, रिसर्च को छोड़ दीजिए, साइकोलॉजी 1-2 पेपर्स को छोड़ दीजिए, ढेर सारे ऐसे पेपर्स हैं जो यूजुअली यू कैन पास ऑन द बेसिस ऑफ द knowledge you are having and having some little bit reading, but that does not make any sense. आप मार्केट में compete नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो मैं इंटरव्यूज में जाता हूँ, but sometimes I find our students very irritating. आप पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और कोई भी इंटरव्यूअर एटलीस्ट when you talk when you attend any interview and all that, they expect better than others. So अगर आप पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एडवांटेज है तो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा. जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो दे हैव ए विजन कि आप पटना यूनिवर्सिटी से आए हैं, सो उनका जो है कि आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है. तो इसीलिए आप ये मत बोलिए कि जो है कि फर्स्ट थिंग इज दैट कि यू मस्ट बी कनेक्टेड विद organically connected with the program, the CEMET program, very important program. और मैंने शुरू में कहा है कि अगर आपको लगता है दिस प्रोग्राम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट तो इसको जबरदस्ती कैरी करने की जरूरत नहीं. यू मस्ट वेरी क्लियर अबाउट इट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मल्टी डिसिप्लिनरी जिसकी बात हम करते आ रहे हैं, इट्स बाय नेचर मल्टी डिसिप्लिनरी. ये तो बाय नेचर ही मल्टी डिसिप्लिनरी है. You study management, you study sociology, you study psychology, you study research methodology, you study history of teacher education, history of education. You study pedagogy of different subjects. At the same time, the students, जिस ग्रुप में आप काम करते हैं, whether you make a project or whatever it is, कोई साइंस का, कोई नेचुरल साइंस से आया, कोई सोशल साइंस से आया, कोई लैंग्वेजेस से आया है, तो दिस अपॉर्चुनिटी,
You might have gone to the new education policy. न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो जो अपॉर्चुनिटी देना चाहता है वो तो हमारे बीच पहले से ही है, और आप उसको भी पढ़िए थोड़ा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, क्योंकि ये आपका अगर सेकेंड सेमेस्टर निकल गया या थर्ड सेमेस्टर निकल गया या फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया जिसमें की पॉलिसीज थी, इट्स हार्डली एनी इंपॉर्टेंट, इट्स हार्डली एनी मैटर। आप पॉलिसी को, नई पॉलिसी आई है, यू मस्ट, दुनिया उस पर बहस कर रही है, चर्चा कर रही है, रोड मैप बना रही है, तो आप कम से कम जिस डिसिप्लिन को आप के स्टूडेंट हैं, आप टीचर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, पेडागोजी के स्टूडेंट हैं, एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, तो यू मस्ट बी नोइंग व्हाट द पॉलिसी सेज अबाउट स्कूल एजुकेशन, कैसे करिकुलर में चेंजेज आ रहे हैं, उन्होंने कौन सा करिकुलर चेंजेज को सजेस्ट किया है, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस क्या है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, या फिर जो हायर एजुकेशन में वो डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, तो उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं या आपको लगता है कि इम्प्लीमेंटेबल है नहीं है। उसके बाद उसमें जो मल्टी डिसिप्लिनरी की बात है, करिकुलम में मल्टी डिसिप्लिनरी, नॉट दैट कि एक इंस्टीट्यूशन में 10-15 या 50 सब्जेक्ट, सोशल साइंस, नेचुरल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज और ये पढ़ाए जाते हैं, वो तो यहाँ तक बात करते हैं टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस में भी सब कुछ होगा, वहाँ भी ह्यूमैनिटीज पढ़ाए जाएंगे, सोशल साइंसेस पढ़ाए जाएंगे, लैंग्वेजेज पढ़ाए जाएंगे, देयर वुड बी बास्केट ऑफ थिंग। मेन इशू है करिकुलम का बास्केट। अगर कोई फिजिक्स पढ़ रहा है तो उसमें म्यूजिक उस बास्केट में है या नहीं, उसमें स्कल्पचर है या नहीं, उसमें एजुकेशन है कि नहीं, उसमें यह भी है कि जो पीएचडी करेंगे, एनी स्टूडेंट वुड बी डूइंग पीएचडी, उसको पेडागोजी पढ़ाया जाए, हाउ टू टीच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो कोर्स वर्क हो रहा है उस कोर्स वर्क ही नहीं, दे मस्ट गेट ए कोर्स ऑन पेडागोजी ऑफ एवरी, बिकॉज दे वांटेड, दे विल गो, वो यूनिवर्सिटीज जाएंगे, वहां पढ़ाएंगे तो पेडागोजी का इनपुट उसमें चाहिए। So that goes in our favor. We are students of pedagogy and they are talking कि हर किसी को pedagogy मान, not only school students. जो भी रिसर्च करेंगे they must be going through this small course of pedagogy. उसके बाद उसमें एक स्ट्रक्चर है कि कैसे गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है कि भाई हायर एजुकेशन कमीशन होगा, उसके अंदर 3-4 बॉडी होंगी, और हमारे जो अभी पुराने रेगुलेटरी बॉडी जो है वो सब खत्म हो जाएंगे। तो आखिर आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो कॉमन आदमी इस पर डिस्कशन कर रहा है। वैसे हम पहले हाइपोथेसिस खत्म कर लेते हैं, देन मैंने सोचा है कि इस पर हम एक दिन डिस्कस करेंगे। वैसे हमने कई फोरम पर डिस्कस किया है, और हाल में एक हम बीएन कॉलेज के एक फोरम पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो अगर हम आपको अगर इन्फॉर्म करते हैं तो फिर जो है कि आप लोग उसमें हायर एजुकेशन पर डिस्कस करेंगे, तो अगर आप उसमें जुड़ सकते हैं। और अभी मैं चाहता हूँ कि फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर या सभी को इन्फॉर्म करे। नाउ एनीवन ऑफ यू विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप पर आप उनको भेज दीजिए अपना जो है व्हाट्सएप नंबर, सो दैट कि हम आपको जो है कि जो लिंक भेज दें और अपने ग्रुप में आप उसको सिंसियरली जो भेज सकें। तो 1-2 स्टूडेंट दो इंटरेस्टेड की और टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपना जो है व्हाट्सएप हमको कर देंगे, ताकि आगे से उनको फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को ना दे करके हम आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं, क्योंकि अब उनका एग्जाम है, दे विल पास आउट, सो टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, थैंक यू। चलिए, टीचर को तो मुक्ति मिलती है, आप तो हाँ, यस बोलिए। देखिए, इट हैज बिकम वेरी इजी फॉर एनीबडी टू टीच यू पीपल, क्योंकि आप पूछेंगे नहीं तो कोई भी कुछ बोल के चला जाएगा। लेकिन ठीक है, हम आपको चांस दे रहे हैं कि आप जाइए, उसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे उसमें जो भी क्वेरीज है, शुरू से आज तक जो भी किया, जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स है, उसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले। हाइपोथेसिस के संबंध में जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे। और ये जो है कि हाँ, बताइए, आप कुछ कर रहे थे श्रुति, यू वांटेड टू से समथिंग?
हेलो, जो कुछ कहना चाह रहे हैं आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।